Note for non-reporting in clause 44. Subject clause was introduced while notification this in view of GST law introduced on this and primarily was to be reported based on 1, 1A, 2, 2A, 3 as envisaged at the time of introduction of GST. Okay. However, there are many issues in implementation. Accordingly, 1A, 2 and 3 were scrapped and 3B was introduced along with 2A and 2B in phased manner. अब देखिए ये जब आया था, जब ये लाइन गड़बड़ लग रही है, नोटिफिकेशन ये तो 2, 1A और 3 ये सब तो पहले ही स्क्रैप हो गया था. चलिए, in view of the above, it was a challenge for accounting software providers and accountants to maintain data as required for reporting in clause 44, and government recognized it and deferred compliance under this clause till financial year 2021. Further, it is also pertinent to note that the nearest data available in this regard for reconciliation is prescribed in table 14 of GST 9C, which is for expense-wise reconciliation of ITC award, and same is also deferred under GST provisions for current financial year 21-22. Further, in most of cases, identification of purchase from composite suppliers and the transaction outside the scope of GST, along with transaction where ITC not availed and treated as part of cost, are either not captured properly or readily not available in accounting software or GST portal. Thus, there were a lot of uncertainty prevailing in this regard, and complete reporting was not possible at all. Clarifications regarding the same have been provided by ICAI with a considerable delay. Wide GN issued only on guideline hoga 14th August 2022. Data needs to be entered, maintained, bifurcated from the initial stage as per clause 44, and clarifications in guidance note for providing complete and error-free reporting under clause 44. Accordingly, taxpayer is not in position to provide the complete details as required, and we are also not in position to verify its correctness and completeness of reporting. The client दे पाएगा ना CA verify कर पाएगा. Hence, information pertaining to GST has not been complied by the taxpayer in the mode and manner mandated by clause 44, and we are also not able to form any opinion in this regard. ठीक है? तो सर डिस्क्लेमर पूरा देना है स्टार्टिंग से देना पड़ेगा आपको अगर इधर से डिस्क्लेमर रीजंस के साथ है. सेकंड पैराग्राफ ये जो सर बोल्ड किया था अकॉर्डिंग टू वहां से देना है सर, क्या देना है? नहीं, पूरा ही देना होगा. पूरा देना होगा, हिस्ट्री बनाना पड़ेगा. इतना बड़ा सर, तो क्या फर्क पड़ता है? यही आया है. अब मैंने तो आज तक वो फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट तो न बनाया है. ये तो जिनेश जी, वसंत जी बता सकते हैं. आपको ना अमित जी. यस सर. मैं आपको भेजता हूँ, मैंने जो डिस्क्लेमर बनाया है, शॉर्ट बनाया है, और मैं वो भी 44 प्लस का रिपोर्टिंग भी भेजता हूँ आपको. वो डिस्क्लेमर से आगे क्लाइंट को कोई इशू नहीं ना जीएसटी डिपार्टमेंट से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. वो तो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं ना. अच्छा सर, मेरे कोई भेज दो सर. और अब देखिए ना, टेबल 14 जो है सो बाइफर्केशन है ही पूरा. नहीं, लेकिन हम लिख रहे हैं ना उसने बुक्स मेंटेन नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है उसका, वो सब. बाइफर्केशन में आपको जी पहले आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि कोई भी क्लाइंट आता है ना और कोई भी सीए ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है. देखिए, क्योंकि जिसके पास रिकॉर्ड प्रॉपर है वो इसका ही जिम्मेदारी लेगा. बराबर है. और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के अबव है उसको डिटेल्स 9C पढ़ना ही है, कंपलसरी है वो. तो ये तो करना ही उसको. बेसिकली 44 क्लॉज जो है, इट इज अ बाइफर्केशन बिटवीन द एक्सपेंडिचर. बाइफर्केशन है रजिस्टर और नॉन रजिस्टर के बीच में. रजिस्टर में उन्होंने फर्दर बाइफर्केशन किया है, जो गुड्स एग्जाम सप्लाई वाला है, सर्विस एग्जाम सप्लाई वाला है, दूसरा कंपोजिट वाला है के साथ आपने कौन सा एक्सपेंडिचर किया. देखिए 44, देखिए मैं जितना याद आ रहा है बोलता टोटल एक्सपेंसेस लिखिए. ठीक है सर पहला टोटल एक्सपेंडिचर वाला आएगा कॉलम, पहला एक्सपेंडिचर का नाम आएगा, परचेज आएगा. मैंने कल एक्सेल शीट भी भेजी है सर आपको. हाँ, वो देखा मैंने. अब देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेंसेस इसको बोलता है. इस टोटल एक्सपेंसेस को रजिस्टर्ड से जो खरीदा और रजिस्टर्ड से खरीदा इसको भी बाइफर्केट कीजिए. रजिस्टर्ड में भी नॉर्मल वाला अलग कीजिए और कंपोजिशन वाला अलग कीजिए. यही तो कह रहा है. तीन टाइप का है रजिस्टर में. इसमें ये भी कह रहा है कि इस एक्सपेंसेस को एग्जेम्प्टेड वाला जो है वो भी अलग कीजिए. सर रजिस्टर में एग्जाम कराता है अलग. हाँ जी, रजिस्टर में ही एग्जाम अलग कराता है. रजिस्टर्ड में ही एग्जाम अलग करवा रहा है. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं
बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में सोचिए और छोटे मोटे बिजनेसमैन के बारे में सोचिए। हम्म 1000 से ज्यादा मेरा सप्लायर, यानी कि 1000 से ज्यादा लोगों से मैं परचेज करता हूँ। हम्म चाय कॉफी के साथ, स्नैक्स के साथ, हाँ। बड़े बड़े जो जिसमें मैं डील करता हूँ, यानी हाँ। कि जो परचेज कर रहा हूँ वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों होंगे। यस सर। अब जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, जो मान ली मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, वहीं पर ये डिफरेंशिएशन आता है। तो जो मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, कंज्यूमेबल्स परचेज कर रहा हूँ, सबकी डिटेल चाहिए उसको। हाँ तो क्या मैं ये जो 1000 जो मेरा सप्लायर है उसका डेटा मैंने कंपाइल किया है? सर, आपको पता है जीएसटी ऑडिट करते हैं तो जिसका क्रेडिट लेना है तो हर एक कंपनी उसको सामने वाले से बोलता है कि आप रजिस्टर करा लो। पहले तो करा लिया कंपलसरी, उसके सारे वेंडर्स को करा लिया, हाँ, किसी ने नहीं छोड़ा है। अगर हमारे साथ ट्रांजेक्शन करना है तो आप रजिस्टर हो जाओ। ठीक बात है। अब एक बात बताइए, अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर जो रजिस्टर्ड था वो अनरजिस्टर्ड बन जाएगा, तब आप क्या करेंगे? हाँ 3 महीने रजिस्टर्ड था, 9 महीने अनरजिस्टर्ड रह गया। कोई कंपोजिशन से नॉर्मल में चला गया, तब क्या करेंगे? नॉर्मल से कंपोजिशन में चला गया तो क्या करेंगे? और जो गुड्स एग्जम्प्ट हो गया तो क्या करेंगे? अब बीच में गुड्स एग्जाम्प्ट हो गया तो क्या करेंगे? और एग्जाम से टैक्सेबल में आ गया तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? बराबर है। अगर किसी का नंबर सस्पेंड कर दिया 6 महीने से, तो वो भी तो बीच में अटक रहा है। अगर सस्पेंड कर दिया तो उसको क्या करना है? वो भी अटक गए। तो ये चैलेंजेस तो है ही ना। या तो गवर्नमेंट इस डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट कर लेगी और इस साल डिस्क्लेमर जाएगा, और जो 22-23 का सितंबर आ ही चुका है, 6 महीना ऐसे चला गया इसका। तो ये अगर वाकई में इंप्लीमेंट हो तो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर से इंप्लीमेंट हो। सर ये तो 19-20 से डाला हुआ है, उसको डिफर कर करके अभी लाए। हाँ, और अभी जो लाए हैं वो देखिए, जैसे इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले आ जाता है ना, हाँ। वैसे ये भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये डिस्क्लेमर ही देना चाहिए। क्या लगता है आपको? सर आप तो डिस्क्लेमर ही दे रहे हैं। हाँ वसंत जी, डिस्क्लेमर ही दे रहे हैं आप लोग। जी सर। मैं तो सर क्या करता हूँ, रिमार्क्स बनाता हूँ जहाँ पे ये लिखता हूँ, ये सब इसको पूरा क्वालिफाई नहीं करता हूँ। ओके, ये पूरा नहीं क्वालिफाई करना है, हाँ सिर्फ क्लॉज पे करना है। नहीं, मतलब 44 का क्लॉज के ये पूरा जो आपने लिखा है नोट्स है पूरा ऑन क्लॉज भी मैं दिखाता हूँ आपको, अमित जी मैं शेयर करता हूँ आपको, ठीक है ना, दोपहर को। हेलो सर, मेरे को भी जी शेयर सर, करो सर। भेजिए। मेरे को भेज भी दीजिए सर सर। शेयर कर दिया।